Hello everyone, welcome back to Dentozen. Do subscribe my channel to get the timely updates of new videos. So here we are today with the new video on oral lichen planus part 2. We have already discussed oral lichen planus part 1 in which I have discussed about the clinical features, etiology, pathogenesis and meaning of lichen planus. So I strongly recommend to watch my first video on lichen planus so that you can understand part 2 in a better way. So let's get started. So in this, we are going to discuss the histopathology, differential diagnosis, malignant transformation, oral lichen planus versus oral lichenoid lesion and management of lichen planus. So in histopathology, we have to discuss the various features. So we discussed कि जो oral lichen planus है, उसमें हमारा बेसल एपिथेलियल सेल्स के अगेंस्ट हमारे टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं जो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. सो ये ब्लू कलर के जो सेल्स हैं, ब्लू डॉट्स, ऑल दीज आर द इन्फ्लेमेटरी सेल्स which come to lie near the basal cell of the epithelium to destroy it. तो ये वाले एपिथेलियल सेल्स के पास जो हमारे मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आया है, दिस इज मेड अप ऑफ lymphocytes and histiocytes. That is the viva question. You may be asked which cells are seen in this inflammatory infiltrate. First point. Second point is ये cells अब एक dense band बनाते हैं. They are like a band. एक band की तरह पड़े हुए हैं just below the epithelium, subepithelial. So first point is subepithelial dense band of mononuclear infiltrate comprised of lymphocytes and histiocytes. अब जब ये सेल्स आ गए, इन्होंने बेसल सेल्स की डीजनरेशन करा दी, तो हमें यहाँ पे बेसल सेल्स नहीं दिखेंगे. सो हियर यू कैन नॉट सी एनी बेसल सेल्स नहीं दिख रहे, वो तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं. तो second point in the histopath is degeneration, liquefactive degeneration of the basal cell layers. बेसल सेल्स जो हैं वो दे अंडरगो एपोटोसिस, उनकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है और वो डीजनरेट कर जाते हैं. अब जब बेसल सेल्स ही नहीं है तो जो रेटेरिजेस हैं, शेप ऑफ द रेटेरिजेस वो चेंज हो जाती है और ये बन जाते हैं सॉ टूथ शेप रेटेरिजेस. That is very important viva question. What is the shape of reteridges in lichen planus? So they are like sawtooth shape reteridges. Very, very important viva question. Now after that we have read in the first video that क्योंकि यहाँ पे हमारे एपिथेलियल सेल्स जुड़ जाते हैं और ऊपर से वो डीस्कोमेट नहीं हो पाते हैं, ऊपर से शेड नहीं हो पाते हैं, तो एपिथेलियल सेल्स की थिकनेस बढ़ जाती है. सो देयर इज इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द एपिथेलियल सेल स्ट्रेटम स्पाइनोसम व्हिच इज नोन एज acanthosis. Osis means thickening of the acanthous cells which is stratum spinosum with intercellular edema. So जो एकेंथस सेल्स हैं उनका इडीमा हो जाता है, वो स्वेल अप हो जाते हैं और उनका नंबर भी बढ़ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोमिनेंट स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम लेयर. स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम लेयर जिसके अंदर केरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखती है. एंड द फोर्थ इज क्योंकि ऊपर से हमारा शेड नहीं हो रहा है तो केराटिन एक्यूमुलेट हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड हाइपर इंक्रीज्ड ऑर्थोकेरेटोसिस और हाइपर पैराकेरेटोसिस. So here we get all the features of the lichen planus. It's very easy. अगर हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे, first is subepithelial dense band of mononuclear inflammatory infiltrate. Second is degeneration of basal cell layer. Third is sawtooth shaped reteridges. Fourth is acanthosis. Fifth is prominent stratum granulosum. And sixth is hyperkeratosis. अब ये जो हमारे बेसल सेल्स टूट जाते हैं वो कभी कभी हमारे नीचे कनेक्टिव टिश्यू में लमाइना प्रोप्रिया में आ जाते हैं और ऐसे हमें राउंड से रेड कलर के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं और इनको हम कहते हैं सीवेड बॉडीज. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. व्हाट आर सीवेड बॉडीज? सो दीज आर राउंड टू ओवॉइड शेप eosinophilic globules 20 micrometers in size
and they represent the degenerating basal cells. So Viva question is, what are seaweed bodies? They are degenerating basal cells. Second is, they are of which color? They are eosinophilic, round or ovoid shape. Now next Viva question is, what are the other names for these seaweed bodies? Now various names have been given like colloid bodies, hyaline bodies, fibrillar bodies and cytoid bodies. Okay, now after this we come to another term which is used in the histopathology of lichen planus, which is known as Max Joseph space. Now here as you can see the term space, that means यहाँ पे हम एक space की, खाली जगह की बात कर रहे हैं. तो ये जगह कहाँ पे है? सो हिस्टोपैथ में हमारे बेसल सेल्स टूट गए. तो जब बेसल सेल्स टूट गए हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारा एपिथीलियम है. इसके ऊपर जो हमारे सेल्स थे वो बेसल सेल्स थे वो टूट गए और नीचे में ये हमारे लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं. तो ये लिम्फोसाइट्स ने इनकी डिस्ट्रक्शन कराई है और इन दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया. यहाँ पे बेसल सेल्स टूट गए, वो अलग हो गए कनेक्टिव टिश्यू से, बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट गया और वहां पे एक स्पेस आ गया. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड मैक्स जोसेफ स्पेस. ये जब हम स्लाइड बनाते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब ये हमें स्पेस दिखती है. सो व्हाट इज मैक्स जोसेफ स्पेस? इट इज हिस्टोलॉजिकल क्लेफ्ट. हिस्टोलॉजिकल क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मीन स्पेस. कहाँ पे है? एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू जंक्शन के बीच में, जहां एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन हो रहे हैं. ये एपिथेलियम है और ये कनेक्टिव टिश्यू है. इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज मैक्स जोसेफ स्पेस. अब ये क्यों बनती है? क्योंकि ये जंक्शन वीक हो गई है. और वीक क्यों हुई है? क्योंकि बेसल सेल्स टूट गए हैं. सो ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ बेसल सेल्स एंड डिसरप्शन ऑफ द एंकरिंग एलिमेंट्स, और जो उन बेसल सेल्स को जोड़ के रखा था, एंकर करके रखा था बेसमेंट मेम्ब्रेन से, हेमीडेस्मोसोम्स, वो सब टूट गए हैं. उसकी वजह से ये जंक्शन वीक हो जाती है और जब हम सेक्शन प्रिपेयर करते हैं तो एपिथेलियम अलग हो जाता है और कनेक्टिव टिश्यू अलग हो जाता है और उन दोनों के बीच में स्पेस आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मैक्स जोसेफ स्पेस. नेक्स्ट वी कम टू द इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न इन लाइकन प्लानस. अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस एक टेक्निक है, एक डायग्नोस्टिक मेथड है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है. जैसे कि लाइकन प्लानस हमारा ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है या जो भी डिपॉजिट्स हुए हैं तो वो कहाँ पे हैं और कैसे दिखते हैं. सो लाइकन प्लानस में जब हम ये टेक्निक करते हैं तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स और कॉम्प्लीमेंट के डिपॉजिट्स कम दिखते हैं, जो कि एक कंसिस्टेंट फीचर नहीं है. मतलब कि जरूरी नहीं कि ये हमें दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन जो हमें दिखता है दैट इज फिब्रिनोजन और ये हमें दिखता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में. बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन वो एरिया है जहां पे हमारा एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू जुड़े हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू. सो उस एरिया में हमें फिब्रिनोजन और फिब्रिन के डिपॉजिट्स दिखते हैं और उनके अगेंस्ट जब हम एंटी फिब्रिनोजन डालते हैं बाहर से तो वो रिएक्ट कर जाता है और वहां पे हमें एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखता है जो कि हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में पॉजिटिवली देख सकते हैं. सो ये जो पैटर्न दिखता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, ये अगर एपिथेलियम है और ये कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ पे हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन पे ये पैटर्न दिखेगा. This pattern where we can see a thick immunofluorescent pattern, this is called as particulate pattern और कभी कभी इसको shaggy pattern भी बोलते हैं. Particulate shaggy pattern seen in the basement membrane zone और इससे कुछ कुछ extensions नीचे को जाते हुए दिखते हैं connective tissue में या lamina propria में. So pattern in the basement membrane zone with numerous extensions into the superficial lamina propria. ये पैटर्न हमें ल्यूपस इरिथेमेटोसिस में भी दिखता है. नेक्स्ट वी कम टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. अब लाइकन प्लानस क्लिनिकली हमें व्हाइट स्ट्राई दिखते हैं जिसको हम विकहेम स्ट्राई बोलते हैं, व्हाइट रेडिएटिंग लाइंस. अब ऐसे ही हमें व्हाइट जो और डिजीजेस हैं जो व्हाइट जिसमें हमें लीजन्स दिख सकते हैं उनसे हमें डिफरेंशिएट करना है लाइकन प्लानस को. सो वन इज लाइकनॉइड रिएक्शंस, then leukoplakia white patches, candidiasis fungal infection, pemphigus other autoimmune disease, pemphigoid autoimmune disease, erythema multiforme, syphilis, recurrent abscess ulcers, lupus erythematosus. So all these are the differential diagnosis.
नेक्स्ट वी कम टू द मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि ये प्री कैंसरस है, इसमें कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो इसका प्री मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट है 0.3 to 3%। दैट इज अनदर वाइवा क्वेश्चन जो कि लो कंसीडर किया जाता है एंड दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल कि ये केसेस मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है या नहीं होता, दैट इज नॉट श्योर, बट ओवरऑल फ्रीक्वेंसी इज 0.3 to 3%। अब ये कौन से वाले टाइप्स में ज्यादा होता है? जो हमारे इरोसिव और एट्रोफिक टाइप्स हैं, जहां पे एपिथेलियल थिन है, वहां पे मेलिग्नेंसी बनने के चांसेस ज्यादा है, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है और एंड दिस इज मोर कॉमन इन वुमेन. So that is another viva question, in which types it is more common. So erosive and atrophic forms of lichen planus show more chances of malignant transformation. Next we come to the important difference between the two terms oral lichen planus and oral lichenoid lesion. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था lichen planus में हमारा ऑटोइम्यून कंडीशन है, oral lichenoid lesion में हमारा बाहर से कोई ड्रग या हमारा टूथपेस्ट या हमारी रेस्टोरेशन, there will be some antigen there. So first we'll talk about the clinical differences between the two. सो ओरल लाइकन प्लानस हमारा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, दैट मीन्स हमें ओरल म्यूकोजा पे दोनों तरफ पे, दोनों साइड्स पे हमें लीजन्स दिखते हैं. बायलैटरल, बायलैटरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिकल ऑलमोस्ट सेम साइज के सेम जगह पे. जबकि लाइकनॉइड लीजन जो है वो यूनिलैटरल है, सिर्फ एक ही साइड पे होगा, तो उसमें बायलैटरलिटी हमें नहीं दिखती. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओरल लाइकन प्लानस हमारा वेल डिफाइंड साइट्स में होता है, जिसमें हमने पढ़ा था मोस्ट कॉमन साइट इज बक्कल म्यूकोजा एंड टंग. लेकिन जो लाइकनॉइड लीजन है वो हमारा एटिपिकल साइट्स में हो सकता है, जैसे कि जिंजाइवा, जिंजाइवा में हो सकता है, लिप्स में हो सकता है, पैलेट में हो सकता है. सो ओरल लाइकनॉइड लीजन हमारा एटिपिकल साइट्स में हो सकता है. विकम स्ट्राई हमें दिखते हैं लाइकन प्लानस में, वाइट रेडिएटिंग लाइंस, वही सिमिलर हमें लीजन ओरल लाइकनॉइड लीजन में दिखता है, इसीलिए हम इसको ऑइड बोलते हैं, लाइकनॉइड, लाइकन प्लानस लाइक, ऑइड का मतलब है लाइक. सो क्लिनिकली हमें दोनों में विकम स्ट्राई दिखते हैं. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये लाइकनॉइड लीजन है या लाइकन प्लानस है, अगर हम जो एजेंट है जिसकी वजह से लीजन बन रहा है, जिसपे जो हमें लगता है कि हो सकता है, उसको अगर हम रिमूव कर दें, हम कोई ड्रग या कोई रेस्टोरेशन या कोई टूथपेस्ट, उसको हम हटा दे, ट्रिगर को हटा दे, तो ये लीजन भी हट जाता है, ये रिजॉल्व हो जाता है, गायब हो जाता है. लेकिन अगर वो लाइकन प्लानस है तो वो गायब नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट method to distinguish clinically lichen planus from lichenoid lesion. Now we will look at the histopath differences between the lichen planus and the lichenoid lesion. अब जो lichen planus होता है उसमें जो inflammatory infiltrate है that is in the form of a sharp band, एक बैंड की तरह है. लेकिन lichenoid lesion में ये diffuse होता है, spread हुआ होता है. lichen planus में ये जो inflammatory cells हैं ये ऊपर के lamina propria में ही रहते हैं, superficial connective tissue. लेकिन lichenoid lesion में ये deeper होते हैं, नीचे के connective tissue में भी जाते हैं और blood vessels के अराउंड भी जाते हैं, that is called perivascular, around the blood vessels. और इन इन्फ्लेमेटरी सेल्स में प्लाज्मा सेल्स भी हो सकते हैं और इओसिनोफिल्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट देयर इज इंक्रीज ब्लड वेसल्स इन द लाइकन प्लानस, इंक्रीज वैस्कुलैरिटी इन द लाइकन प्लानस, बट नो सच चेंजेस सीन इन लाइकनॉइड लीजन. थर्ड इज जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो हमारी थिक हो जाती है लाइकन प्लानस के अंदर, जबकि ऐसा कोई भी चेंज हमें लाइकनॉइड लीजन में नहीं दिखता. Then colloid bodies, which are degenerating basal cells, they are seen in lichen planus, but their number is increased in the oral lichenoid lesion, and they are seen as eosinophilic bodies, eosinophilic globules just below the epithelium, and they are known as colloid bodies. बोला जाता है कि लाइकनॉइड डिस्प्लेजिया भी हो सकता है. व्हाट इज लाइकनॉइड डिस्प्लेजिया? प्रोलिफरेटिव वेरुकस ल्यूकोप्लेकिया जो एक ल्यूकोप्लेकिया की टाइप है वो क्लिनिकली लाइकन प्लानस को रिजेंबल करती है, क्योंकि वो ओल्डर फीमेल्स में होता है और वो टोबैको से एसोसिएटेड नहीं होता जैसे कि बाकी ल्यूकोप्लेकिया होते हैं.
और यही टाइप हिस्टोलॉजिकली भी कभी कभी लाइकन प्लैनस को रिजेंबल कर सकती है, क्योंकि उसमें एपिथेलियल डिस्प्लेसिया के साथ साथ हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट दिख सकता है इन द फॉर्म ऑफ बैंड, जिसको देख के हमें लग सकता है कि शायद ये लाइकन प्लैनस है। सो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं लाइकनोइड डिस्प्लेसिया। लाइकन प्लैनस जैसे हमें बैंड दिख रहा है और हमें एपिथेलियल डिस्प्लेसिया भी दिख रहा है। Now we come to the last slide, that is management. There is no cure because this is autoimmune condition. हम एंटीजेंस को हटा नहीं सकते, लेकिन हम इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो अगर हमारे लीजन स्मॉल है तो हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, बेक्लामेथासोन, ट्राइएमसिनोलोन। अगर हमारे सीवियर लीजन्स हैं, इरोसिव टाइप में, ट्रॉफिक टाइप में, तो हम सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन टैबलेट यूज कर सकते हैं इन टेपरिंग डोजेस। टेपरिंग मतलब हम उसकी डोज को रिड्यूस करते हैं वीक बाय वीक। फर्स्ट वीक में हम 30 mg देते हैं, सेकेंड वीक में 15 mg पर डे और थर्ड एंड फोर्थ वीक में 5 mg पर डे, एंड देन वी डू द फॉलो अप। अलॉन्ग विद दैट वी गिव एंटीफंगल एजेंट्स like clotrimazole, nystatin, vitamin A, retinoids, इनका एंटी केरेटिनाइजिंग इफेक्ट होता है। साइक्लोस्पोरिन कैन बी गिवन विच रिड्यूसेस द CD4, टी सेल्स का इम्यूनोसप्रेशन कर सकती है। सर्जिकली हम कर सकते हैं वो केसेस जो हमारे कन्वेंशनली रिस्पॉन्ड नहीं करते, बाकी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, वहां पे हम सर्जिकल थेरेपी यूज कर सकते हैं, जैसे अल्सरेटिव फॉर्म्स हैं। देन साइकोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो हम पेशेंट को स्ट्रेस के रिलेटेड काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि स्ट्रेस से बढ़ सकते हैं लीजन। डैप्सोन कैन बी यूज्ड विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लीजन्स बाय इनहिबिटिंग द कीमोटैक्टिक फैक्टर, जो कि हमारा ये इम्यून रिलेटेड बेसल सेल डिजेनरेशन बढ़ाता है, उसके अगेंस्ट इट्स लाइक एंटीबैक्टीरियल सल्फोन। देन प्यूवा थेरेपी, हम अल्ट्रावायलेट रेज यूज कर सकते हैं। So the main aim of the management or the treatment is to keep the patient disease free as much as possible. हमारे लीजन्स आते रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे, जब जब स्ट्रेस होगा, इमोशनल अपसेट होगा, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हमारा मेन जो ट्रीटमेंट प्लान है या मैनेजमेंट है, दैट इज टू कीप द पेशेंट डिजीज फ्री, इंटरवल्स में उसको रखने का, एंड रेगुलर फॉलो अप. So that is all for this video, that is lichen planus part 2. So if you enjoyed my teaching method, please hit the like button, subscribe my channel, and keep sharing, keep growing. Also send me some suggestions for improvement of this channel. Thank you so much. See you in next video, and thank you for subscribing. Till then, take care. Bye bye.